change of state or change in the number of moles or change in the number of moles. For example, water liquid to water solid volume increases. Water liquid to water gas volume increases. PCl5 giving us PCl3 plus Cl2, number of moles increases. अगर हम इनको कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम में करेंगे तो हमें पता है कि वॉल्यूम बढ़ना चाहता है तो नेचुरल एक्सप्लोजन हो जाएगा. अगर 1 मोल गैस आपने ली तो 22.4 लीटर इज द वॉल्यूम, लेकिन 2 मोल्स के लिए वही वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 + 1 2 मोल्स. तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड इज 44.8 लीटर. तो अगर आप उसको कहोगे नहीं तुम्हें 22.4 लीटर में ही रहना है तो वो एनर्जी से उस कंटेनर को फाड़ देगी. तो गैस कैन बर्स्ट दैट कंटेनर जस्ट इफ नंबर ऑफ मोल्स आर इंक्रीजिंग. ठीक है जी, समझ आ गया. Therefore, Q at constant pressure is to be defined. इसलिए हमें Q at constant pressure define करना पड़ा. Therefore, Q at constant pressure is to be defined. अब तक हमने किया डेल्टा U is Q plus W, right? और वी कैन से Q minus W, कुछ भी ले सकते थे आप. अगर हम कहते हैं Q at constant pressure minus P delta V, because pressure is constant, the pressure is having single value. Whenever pressure is constant, volume can change. The volume is changing from some value V1 to V2. So P delta V is written. This is delta U is equal to QP minus P delta V. It means QP can be written as delta U plus P delta V. Clear? And this QP is called delta H. Delta H is now delta U plus P delta V. So delta H is equal to delta U plus P delta V. Clear? It is enthalpy change, named as enthalpy change. H U plus PV. Here enthalpy is sum of internal energy and pressure volume energy. Sum of U and pressure volume energy is called enthalpy. Now डेल्टा H, अगर इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करें तो डेल्टा H is a state function. This is a state function. It is a state function, that means delta H is H final minus H initial, or we can say H2 minus H1, or enthalpy of products minus enthalpy of reactants. So delta H can be written as H final minus initial, H2 minus H1, or product minus reactants.
Next point we have is delta H is an extensive property. तो दिस इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये हम लास्ट टाइम भी कर चुके हैं. ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स तो हर थर्मोडायनामिक क्वांटिटी शो करेगी. हर थर्मोडायनामिक क्वांटिटी स्टेट फंक्शन होगी, हर बार वो एक्सटेंसिव भी होगी. इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. दैट मीन्स अगर 1 मोल कार्बन कैन प्रोड्यूस डेल्टा H minus 393.5 kilojoules, then 10 mole carbon can produce. So delta H will become minus 3935 kilojoules. Right? It means आप 1 मोल की वैल्यू अगर आपको दे दी जाए तो 10 मोल आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे. तो ये कैपेसिटी है कि अमाउंट के साथ साथ वैल्यू चेंज हो रही है. अमाउंट 10 टाइम्स किया तो वैल्यू भी 10 टाइम्स हो गई. ठीक है, यानी मैथमेटिकली जिसे हम यूनिटरी सिस्टम कहते हैं वो थर्मोडायनामिक्स की जान है. सारे न्यूमेरिकल्स में ये यूज करोगे तो न्यूमेरिकल निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे. तो थर्मोडायनामिक्स बेसिकली मैथमेटिकल साइंस है. एक तो अलजेब्रा इसमें मैक्सिमम यूज होगा और एक यूनिटरी मेथड. 2 चीजें हम यूज करेंगे. वन इज अलजेब्रा, अनदर इज यूनिटरी मेथड. तो अब आपके पास for 1 mole it is delta H minus 393.5. For 10 mole it becomes 3935 kilojoules. The unitary method we have to use. Next point. Delta H is equal to Q at constant pressure. Delta H is equal to Q at constant pressure. That means heat content of the system. Heat content of the system at constant pressure. So delta H is heat content of the system at constant pressure. Now there can be a statement to prove. आपको प्रूव करने के लिए कहा जाए कि अब डेल्टा H QP के इक्वल है, तो हाउ यू कैन प्रूव दैट. मेरे डेल्टा H का फॉर्मूला अभी आपने किया डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. नाउ वी नो दैट डेल्टा U किसके इक्वल है? Q माइनस W. और ये मैंने लिख दिया QP माइनस W. If it is QP minus P delta V is delta U, so using this value in first equation, using value of delta U in delta H equation, तो ये बन जाएगा delta H is Q at constant pressure minus P del V plus P delta V cancelled out. We get Q at constant pressure is delta H. Hence we have proved that delta H is equal to Q at constant pressure. डेल्टा H का ये फॉर्मूला हमारे पास है पहले से. अगर हम डेल्टा U की जगह पे Q माइनस W लिखते तो लिख सकते थे. W P डेल्टा V तभी लिख सकते हैं जब प्रेशर कांस्टेंट हो. प्रेशर की एक वैल्यू लिख रहे हो, W की वैल्यू P डेल्टा, वर्क डन इज P डेल्टा V. और Q एट कांस्टेंट प्रेशर, ये वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी. डेल्टा U के प्लेस पे मैंने लिख दिया QP माइनस P डेल्टा V. माइनस P डेल्टा V प्लस P डेल्टा V इज कैंसल्ड आउट. राइट. So this is about your delta H is equal to QP. क्या फर्क हुआ डेल्टा U और डेल्टा H में? डेल्टा U था QV के बराबर और डेल्टा H हो गया QP के इक्वल. ठीक है जी, समझ आ गया सबको? नेक्स्ट पॉइंट इज डेल्टा H नॉट. अगला पॉइंट हमारे पास है डेल्टा H नॉट. अगर हम उसके ऊपर एक डिग्री का साइन डाल देते हैं
This means standard enthalpy change. Standard enthalpy change. Standard enthalpy change at 298 Kelvin and 1 bar pressure. That means at SATP. So we can see delta H naught. Delta H naught एक standard enthalpy change है. This change is at 298 Kelvin, 1 bar pressure and standard ambient temperature and pressure is required. अगर इस कंडीशन में एंथैल्पी चेंज मेजर किया जाएगा तो उसे बोला जाएगा डेल्टा H naught. तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज दैट मीन्स measured at 298 Kelvin, 1 bar pressure. Next point. If our reaction is to be written in thermodynamics, state of reactants and products should be mentioned. अगर आप कोई भी रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए यूज कर रहे हो तो यू आर सपोज टू राइट द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स. अगर आपके रिएक्टेंट की स्टेट आपको नहीं दी गई है तो आपसे हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि आंसर आप ठीक निकाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखो, H2 plus O2 is water, 2H2, 2 water. अगर यहाँ पे लिखा जाए कि गैस एंड लिक्विड तो डेल्टा H इज -x. लेकिन अगर सेम रिएक्शन गैशियस और वाटर भी गैशियस ही लिख दिया जाए तो डेल्टा H naught इज नॉट -x, रेदर इट विल बी -y. तो सिर्फ हमने एक स्टेट ही तो चेंज की, वाटर को लिक्विड से गैस कर दिया तो डेल्टा H की वैल्यू को फर्क पड़ता है, एंथैल्पी को किसी की स्टेट से फर्क पड़ता है. यानी इस साइंस में हमें स्टेट को प्रॉपरली मेंशन करना जरूरी है. साइन दोनों में सेम आ सकता है लेकिन वैल्यू पक्की बात है कि चेंज हो जाएगी. राइट? अब जब वैल्यू चेंज हो गई है तो आपके पास इसका मतलब इस लिक्विड से इस गैस का कन्वर्जन कुछ तो हीट मांगेगा ना आपसे. आपने किसी जगह पे लिक्विड लिख दिया, किसी जगह पे गैस लिख दिया, तो क्या लिक्विड से गैस बनना स्पॉन्टेनियस है? उसके लिए भी तो कुछ एनर्जी चाहिए. तो इसलिए एक्स और वाई कभी इक्वल नहीं होंगे. ठीक है, ये समझ आ गया. इसलिए हर रिएक्शन में ये जरूरी है कि जब आप थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल कर रहे हो तो ये स्टेट्स आपको लिखनी पड़ेंगी, या तो गिवन होंगी या फिर आप उनमें मेंशन करोगे. नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड विद अ नंबर. नेक्स्ट पॉइंट इज if our reaction is multiplied with a number, delta H will also be multiplied with the same number. If a reaction is multiplied with a number, delta H will also be multiplied with the same number. मान लो रिएक्शन का वैल्यू डेल्टा H है और मैंने n टाइम्स रिएक्शन कर दिया तो डेल्टा H भी n टाइम्स हो जाएगा. सोच के देखते हैं कैसे. कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. डेल्टा H की वैल्यू है -393.5 किलो जूल. अगर मैं आपसे बोलूं बेटा 2 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन गिव्स 2 कार्बन डाइऑक्साइड तो डेल्टा H आ जाएगा 2 टाइम्स -393.5. ठीक है, सॉल्व दिस क्वेश्चन. हाउ मच डेल्टा H वैल्यू फॉर combustion of 2 grams of carbon
मेरा क्वेश्चन है, ये आपकी रिएक्शन गिवन है आपको ऊपर, आपने मुझे कैलकुलेट करके बताना है कि 2 ग्राम कार्बन के लिए कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सोचो और करो जल्दी। अब आपके पास इस क्वेश्चन में था कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वैल्यू थी -393.5 डेल्टा एच। ये 12 ग्राम कार्बन के लिए वैल्यू थी, तो आपको मैंने 2 ग्राम्स की वैल्यू पूछी थी। तो फॉर 12 ग्राम दिस इज द वैल्यू, फॉर 2 ग्राम्स दिस इज -393.5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2। ठीक है जी, it is -393.5 by 6। क्लियर, समझ आ गया सबको? तो न्यूमेरिकल्स में हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा हाउ टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज। ठीक है, आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे सब जगह। यूनिटरी आप यूज कर सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स में इट्स अ वेरी वैलिड साइंस। फॉर मैथमेटिक्स ऑल्सो पूरा मैथमेटिकल कंसेप्ट है, कहीं हम कोई दूसरा कंसेप्ट यूज ही नहीं करते। ठीक, नेक्स्ट वी हैव इज, अब हमारे पास अगली टर्म थी सीपी। हमने भी सी यूज किया, स्मॉल सी अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिफाइन किया था। स्मॉल सी इज स्पेसिफिक हीट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट का मतलब था Q पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। C का मतलब था स्पेसिफिक हीट, इसका मतलब है Q पर ग्राम यानी 1 ग्राम के लिए, और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। C कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, क्योंकि अब हम थर्मोडायनेमिक्स कर रहे हैं, तो हम कहेंगे CPV हो सकता है और CVV। CP का मतलब है एट कांस्टेंट प्रेशर और CV इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सेम वे वी हैव अनदर टर्म कैपिटल C. Capital C is now molar heat capacity. It is molar heat capacity. Molar heat capacity is Q per mole per degree Celsius. यानी अब आप 1 मोल की बात करोगे, 1 ग्राम की नहीं। और ग्राम के लिए डिस्कशन करना या कैलकुलेशंस करना या एक्सपेरिमेंट करना मुश्किल था, इसलिए पर मोल को प्रेफर कर लिया गया, क्योंकि 1 मोल को मेजर करना, वे करना सब आसान था। कैपिटल C इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स, अगेन CP and CV. This CP is at constant pressure and this is at constant volume. तो हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स, CP and CV. One is at constant pressure, another is at constant volume. CP is always greater than CV. Next point we have is CP is always greater than CV. CP CV से हमेशा बड़ा होता है। Next point, CP minus CV is equal to R. It is equal to R and R is gas constant. Value is 8.314 joules per Kelvin per mole.
or we can say 2 calories per Kelvin per mole. इनमें से कोई भी वैल्यू हमें यूज करनी पड़ सकती है. Delta H is Q at constant pressure, and Q at constant pressure is N capital C delta T. This is now Cp. Formula of delta H is now Q at constant pressure, which is equal to N Cp delta T. पहले हमने क्या लिखा था? mc डेल्टा टी. जब स्मॉल c था मेरा फॉर्मूला था स्मॉल m इंटू स्मॉल c इंटू डेल्टा टी. लेकिन अब क्योंकि हम डेल्टा h निकाल रहे हैं जो कि 1 मोल के लिए है, फॉर 1 मोल दिस वैल्यू बिकम्स नंबर ऑफ मोल्स इंटू कैपिटल C मोलर हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी. पहले था mc डेल्टा टी, अब बन चुका है nc डेल्टा टी. ठीक है. फॉर 1 मोल अगर 1 मोल वैल्यू दिया होता, डेल्टा H इज इक्वल टू QP Cp डेल्टा T. सेम वे डेल्टा U is Q at constant volume. It becomes NCV delta T. Again for 1 mole, this value will become delta U is Q at constant volume CV delta T. तो we can see that अब हमारे फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज है कि अब हम M की जगह पे N पुट कर रहे हैं. We are using NC delta T. यहाँ तक क्लियर है? समझ आ गया बेटा सबको? That means formula of Cp and Cv. Cp is Q by delta T. That is QP by delta T. देख सकते हो आप? Cp is QP by delta T. And Cv is QV by delta T. This is delta H by delta T. This is delta U by delta T. Now we have, आप सोच के बताओ, at boiling point and melting point, temperature of system becomes constant. Boiling point और melting point पे एक सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है. दैट मीन्स डेल्टा T बिकम्स 0. टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर, सेम वे मेल्टिंग पॉइंट इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर. और हम कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम, जब कभी इक्विलिब्रियम आ जाए तो भी टेम्परेचर क्या हो जाता है? कांस्टेंट. जब भी डेल्टा T 0 हो जाएगा तो Cp और Cv दोनों की वैल्यूज इन्फिनिटी आ जाएंगी, बिकॉज डेल्टा T 0 एनीथिंग बाय 0 इज इन्फिनिटी. अगेन डेल्टा T 0 एनीथिंग बाय डेल्टा T 0 इज इन्फिनिटी. तो Cp और Cv की वैल्यू हम कभी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वहां पे जाके तो वो इनफाइनाइट हो जाती है. ठीक है जी, समझ आ गया? अब लिखो जरा, टू प्रूव दैट Cp minus Cv is equal to R. Now we have to prove Cp minus Cv is equal to R.
बेटा प्रूव करना है अब आपको Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। सारी चीजें आपको पता है और आप इसे प्रूव कर सकते थे। पहले जरा आप मुझे बताओ, क्या आपको Cp की वैल्यू पता है? हम प्रूव करना चाहते हैं कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। आप जरा देखो, क्या आपको पता है Cp किसके बराबर है? डेल्टा H बाई डेल्टा T। Cv कितना है? डेल्टा U बाई डेल्टा T। ठीक है, ये दो फॉर्मूला हमें आते हैं। आपको ये भी पता है कि डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये भी पता है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? डेल्टा nRT P डेल्टा V इज डेल्टा NGRT। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। इस क्वेश्चन में अगर हम ये कह दें कि डेल्टा U प्लस R डेल्टा T, N इज 1 ले लिया मैंने, कांस्टेंट, नो चेंज। ठीक है, डेल्टा एन में कोई चेंज नहीं। किसी के भी लिक्विड से गैसेस बनाया तो मोल्स नहीं बदलते, मोल्स रिमेन सेम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आर गोइंग टू बी कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, चेंज विल बी ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। डेल्टा एच, अब तो डेल्टा एच की जगह पे क्या लिख सकते हैं? Cp डेल्टा टी, Cv डेल्टा टी प्लस R डेल्टा टी। It means Cp delta T minus Cv delta T is equal to R delta T. Cp minus Cv, delta T is common, R delta T cancelled. Hence prove that Cp minus Cv is equal to R. This is for 1 mole. And for n moles, Cp minus Cv is equal to nR. That's all about your derivation of Cp minus Cv is equal to R. हाँ जी बेटा, ये सारा डेरिवेशन, ये सारे कंसेप्ट समझ आ गए? After this derivation, if we are given with a value of small c, next point हमारे पास है small c into molar mass। अच्छा, Cp माइनस Cv R होता है और R पॉजिटिव है तो Cp बड़ा नहीं हुआ। समझ नहीं आया। स्मॉल c इंटू मोलर मास इज इक्वल टू कैपिटल C। यानी अगर मान लो स्पेसिफिक हीट गिवन हो तो आप मोलर हीट कैपेसिटी बनाना चाहते हो तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, समझ आ गया बेटा? कैपिटल C की वैल्यू है मोलर हीट कैपेसिटी और मैंने बोला Cp इज ग्रेटर देन Cv। आप मुझे बताओ, एक ओपन कंटेनर, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, आपको समझ आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये मैंने 1 मोल वाटर लिया, दिस इज 1 मोल वाटर। इसका टेम्परेचर 25